Hello students, today we are going to see problem number 3. Ram, Madhav and Keshav are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2018 was as follows. Now here they given us the balance sheet. See the further details. Keshav died on 31st July 2018 and the following adjustment were agreed by as per partnership deed. See the first adjustment, creditors have increased by rupees 10,000. So creditors जो है वो 10,000 से increase हुआ है. So this adjustment is on creditor. Second number, goodwill is to be calculated at 2-year purchase of average profit of 5 year. See the third number, the profit of the preceding 5 year was 2013-14, 90,000, 2015-16, 60,000, 2017-18, 50,000, 2014-15 1 lakh and 2016-17 50,000. So see 2017-18 को क्या इंडिकेट कर रहा है? 2017-18 को लॉस है और बाकी ये सारे प्रॉफिट है. सो दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू कैलकुलेट गुडविल. और हमें किस मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है? बिकॉज यहाँ पे दिया है एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 year. इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल बाय यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है. केशव शेयर इन इट वॉज टू बी गिवन टू हिम. तो ये प्रॉफिट है. See the fourth number, loose tools and livestock were valued at rupees 80,000 and rupees 1,20,000 respectively. So this adjustment is on loose tools and livestock. Loose tool and livestock के ऊपर ही adjustment है. RDD was maintained at rupees 10,000. So this is on debtor, but in this problem we are not going to prepare balance sheet. So ये हमें separately करना है, revaluation में दिखाना है. See the sixth number, commission 2,000 per month was payable to Keshav and profit for 2018-19 was estimated at rupees 45,000 and Keshav share in it up to the date of his death was given to him. This information is given to calculate the share of profit due to Keshav. So here in this problem we have to prepare revaluation account. See the problem, Ram and Madhav Keshav are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. So once again the profit sharing ratio is 5:3:2 respectively. The balance sheet as on 31st March 2018 was as follows, and here is the balance sheet. So firstly we started from the liability side, general reserve 25,000. But student, here in this problem we have to prepare only Keshav capital account because it is given that prepare revaluation account, Keshav capital account showing the amount payable to his executor. So we have to prepare Keshav capital. तो यहाँ पे हम सिर्फ केशव का ही कैपिटल प्रिपेयर कर रहे हैं, सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं प्रिपेयर हो रहा है. सो हियर वी हैव टू कैलकुलेट जनरल रिजर्व फॉर केशव ओनली. So 25,000 is the amount of general reserve and see the ratio of Keshav is 2/10. कैसे 2/10 आ रहा है? तो 5 + 3 + 2 means 10 and यहाँ पे केशव का शेयर क्या है? 2. So 2/10 is the share of Keshav. So general reserve is equal to 25,000 into 2/10. ऐसे करेंगे तो आपको केशव का जनरल रिजर्व यहाँ पे मिल जाएगा. सो जनरल रिजर्व कितना आएगा? 25,000 into 2/10, that means 5,000. See, by जनरल रिजर्व अकाउंट 5,000 केशव कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा जनरल रिजर्व.
तो ये एंट्री हो गई। देन क्रेडिटर 1 लाख, तो क्रेडिटर जो है इसका एक इफेक्ट बैलेंस शीट में होना है, बट इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। सी क्रेडिटर्स हैव इंक्रीज बाय ₹10,000, तो क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो इसका इफेक्ट कहाँ पे होता है? तो इसका इफेक्ट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, बिकॉज इट इज वन काइंड ऑफ लॉस। अगर आपका लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो ये आपके लिए क्या है? लॉस है। तो कहां पे एंट्री होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। सो बिकॉज लायबिलिटी इंक्रीज एंड इट इज अ लॉस, इसका इफेक्ट होगा रिवैल्यूएशन डेबिट। सी टू क्रेडिटर्स अकाउंट 10,000। आफ्टर दैट अनपेड रेंट, तो अनपेड रेंट से रिलेटेड यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है। गो फॉर द नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट राम माधव एंड केशव। सो हियर वी आर प्रिपेयरिंग ओनली केशव कैपिटल, तो हम केशव कैपिटल की ही एंट्री करेंगे। तो केशव का कैपिटल क्या है? 50,000। सो दिस इज द बैलेंस। सो राइट केशव कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। Okay, now go for asset side, goodwill 50,000 and now look at here, ये जो गुडविल है 50,000 ये बैलेंस शीट का गुडविल है। तो बैलेंस शीट का गुडविल, इसका इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में। ये लूज टूल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या? सी हियर लूज टूल से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, पर हम इसको बाद में करेंगे। फर्स्टली वी कंप्लीटेड द अदर एडजस्टमेंट। लूज टूल एंड लाइव स्टॉक वे आर वैल्यूड एट ₹80,000 एंड ₹1,20,000 रिस्पेक्टिवली। तो लूज टूल्स 80,000 हो गया है। सी द अमाउंट ऑफ लूज टूल इज 50,000 इन असेट एंड नाउ इट इज 80,000। सो क्या दिख रहा है? 50,000 से असेट लूज टूल्स की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रहा है मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि ये असेट इंक्रीज है तो इट इज वन काइंड ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे ये कहाँ पे होगा? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में एंट्री होगी। बाय लूज टूल्स अकाउंट 30,000। ओके, देन नेक्स्ट लाइव स्टॉक वेयर वैल्यूड, लाइव स्टॉक का क्या वैल्यूड हुआ है? 1,20,000। नाउ सी लाइव स्टॉक 1 लाख था, नाउ इट इज 1,20,000। अगेन लाइव स्टॉक इंक्रीज, लाइव स्टॉक भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सेम रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड। बाय लाइव स्टॉक अकाउंट 20,000, तो लाइव स्टॉक 20,000 हो गया है। देन नेक्स्ट इज कैश, ये बैलेंस शीट में जाएगा। ओके, देन केशव डाइड ऑन 31st July 2018 and the following adjustment were agreed by as per partnership deed। फर्स्ट हमने कर लिया है, सीधा सेकंड नंबर। तो ये सेकंड एंड थर्ड नंबर का जो इंफॉर्मेशन दिया है, दिस इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सेकंड, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 year परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 year। तो ये 5 year का एवरेज प्रॉफिट दिया है, जिसमें 2017-18 का क्या है? लॉस है तो वो लेस होगा, और बाकी के सारे प्रॉफिट जो है वो क्या होंगे? प्लस होंगे। एंड हियर व्हाट दे गिवन, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 year परचेस। तो ये 2 year परचेस हमें याद रखना है ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सो मेथड ऑफ कैलकुलेशन क्या होगा गुडविल का? एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्योंकि यहाँ पे दिया है एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 year। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? लुक एट हियर, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। नाउ लुक एट हियर, 2013-14 90,000 है प्रॉफिट, 2015-16 इट इज 60,000, 2014-15 1 लाख एंड 2016-17 50,000। तो ये सारे प्रॉफिट प्लस होंगे, और ये जो 2017-18 का ये लॉस है ये क्या होगा? लेस होगा, बिकॉज इट इज अ लॉस, तो वो लेस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 50,000 एंड दिस इज लॉस, तो वो हमने क्या किया है? लेस किया है।
divided by 5. Number of year is 5. 1, 2, 3, 4 and 5. तो क्या आ रहा है? 2,50,000 आ रहा है. 2,50,000 divided by 5. So average profit is 50,000. Average profit is 50,000. And now see the second goodwill. How to calculate goodwill? Goodwill is equal to average profit into number of year purchase. Average profit हमको मिल गया है 50,000 and number of year purchase is 2. So this is given in the problem. Number of year purchase 2. So 50,000 into 2 is equal to 1 lakh. तो average profit into number of year purchase करके हमें क्या मिलेगा? Goodwill. So this is the goodwill of the firm. We have to calculate share of goodwill to केशव. तो यहाँ पे हमें केशव का goodwill calculate करना है. So 1 lakh goodwill of the firm is 1 lakh into Keshav share. So Keshav share we know 2 by 10 is the Keshav share. So share of goodwill 1 lakh into 2 by 10 is equal to 20,000. So 20,000 is the Keshav share. तो ये जो केशव का शेयर है ये केशव कैपिटल अकाउंट में हमें दिखेगा. सो केशव कैपिटल अकाउंट में बाय गुडविल अकाउंट 20,000. सो हियर वी आर प्रिपेयरिंग ओनली केशव. तो हम सिर्फ केशव से रिलेटेड ही देखेंगे. तो यहाँ पे केशव की एडजस्टमेंट हो गई बाय गुडविल अकाउंट 20,000. नाउ सी द फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी किया है. सी द फिफ्थ. RDD was maintained at rupees 10,000. So RDD is the adjustment on debtor. तो इसका एक इफेक्ट बैलेंस शीट में होगा. एंड सेकंड इफेक्ट बिकॉज RDD पहले मेंटेन नहीं हुआ था. देखो असेट साइड में RDD नहीं है. तो अभी RDD क्या हो रहा है? मेंटेन हो रहा है. बस डेटर उतने से क्या हो रहा है? कम हो रहा है. सो डेटर मीन्स असेट जो है वो बिकॉज ऑफ RDD क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. तो दैट इज वाई इट इज अ लॉस है. इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में इसको दिखाएंगे. टू RDD अकाउंट 10,000. देन सी द नेक्स्ट 6 नंबर. कमीशन रुपीज 2,000 PM मीन्स पर मंथ वॉज पेएबल टू केशव. तो इसके लिए यहाँ पे हमें केशव का जो क्या है कमीशन जो है वो कैलकुलेट करना है. कैसे कैलकुलेट करेंगे? लुक एट हियर द बैलेंस शीट. द डेट ऑफ बैलेंस शीट इज 31st March एंड केशव डाइड ऑन 31st July. तो यहाँ पे मंथ कितना आ रहा है? मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई फुल. तो कितना हो गया? अप्रैल, मई, जून और जुलाई. दिस इज 4 month. तो 2,000 into 4 इस तरीके से करेंगे तो हमें केशव का कमीशन मिल जाएगा. सो 2,000 into 4 मीन्स 8,000. सो ये भी केशव को पेएबल है मीन्स केशव कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. बाय कमीशन अकाउंट 8,000 एंड ब्रैकेट में दिखाएंगे कि ये 8,000 कैसे आया. 2,000 into 4 करके हमें ये 8,000 मिला है. आगे देखो वही एडजस्टमेंट. आगे देखो प्रॉफिट फॉर 2018 एंड 19. तो इस ईयर का द प्रॉफिट क्या है? एस्टिमेटेड एट रुपीज 45,000. 45,000 प्रॉफिट इसका एस्टिमेट हुआ है. एंड केशव शेयर इन इट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ वाज गिवन टू हिम. तो केशव का शेयर इसमें हमें कैलकुलेट करना है. कैसे कैलकुलेट करेंगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू लास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू शेयर ऑफ केशव एंड द पीरियड. तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 45,000. केशव का शेयर क्या है? 2 by 10 दैट वी नो. एंड पीरियड 4 by 12 बिकॉज केशव डेथ अराइजेस ऑन 31st July. तो मार्च के बाद अप टू जुलाई कितना मंथ हो रहा है? 4 month हो रहा है. वो 4 by 12 करके हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल सकता है. सो 45,000 into 2 by 10 into 4 by 12 is equal to 3,000. दिस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हमें कहाँ दिखाना है? केशव कैपिटल के क्रेडिट साइड में. बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 3,000 इस तरीके से.
and now we have to close the revaluation account. So see, 30,000 plus 20,000, this is 50,000. 30,000 plus 20,000 50,000, यही 50,000 यहाँ पर भी आएगा. And the revaluation profit, इसे हम क्या कहेंगे, पार्टनर्स. इसे दिस प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑल 3 पार्टनर्स, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड का है तो इसके लिए प्रॉफिट है और ये तीनों पार्टनर्स में क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे. तो ये हमें लिखना है यहाँ पे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड राइट इन ब्रैकेट प्रॉफिट. सो 30,000 जो है वो 5:3:2 रेशियो से डिवाइड होगा. इस तरीके से राम का प्रॉफिट आ रहा है 50,000, माधव 9,000 एंड केशव 6,000. तो ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में आया है, जाते वक्त क्रेडिट में जाएगा. बट हियर वी प्रिपेयर ओनली केशव कैपिटल अकाउंट, तो हमें सिर्फ ये केशव का 6,000 है, इसकी ही एंट्री करनी है. सो केशव कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, show in bracket profit and the amount is 6,000. तो यहाँ पे हमें इसका केशव का प्रॉफिट भी मिल गया. नाउ वी हैव टू क्लोज केशव कैपिटल ऑल्सो. द टोटल ऑफ दिस इज 92,000, यही टोटल यहाँ पे लाना है 92,000. वी गेट बैलेंस दैट इज 92,000. तो ये केशव का कैपिटल का बैलेंस हमें मिल गया, जिसे हम एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट भी कह सकते हैं. तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो रहा है. आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.